Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to study the reflection today, right? तो basically हम लोगों ने reflection देख लिया है, plane mirror से reflection देख लिया है, spherical mirror से reflection देख लिया है. Now it's time to study the refraction, and that is a phenomena whenever light travels from one medium, goes into the another medium, and while going into the another medium, how it behaves and why it behaves the way it is. It does actually. So basically ये चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं along with some laws. तो basically we are talking about the refraction phenomena, क्यों होता है, कैसे होता है and कहाँ कहाँ देखने मिलता है, ठीक है. उसके अलावा हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखने वाले हैं. ये सभी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़े बहुत पुराने जो टॉपिक हमने स्टडी किए हैं उसका थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. सो गेट इट रेडी. और आप सभी को ये बात पता है दैट वी डू स्टडी फॉर द ओलंपियाड्स एज वेल एज द स्कूल एग्जामिनेशन. सो बेसिकली इफ़ यू आर द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन और इफ़ यू आर द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द you can say examination like the Olympiads examination, competitive examination, right? So basically if you are the one who is doing these both things or one of these things, preparing for one of these examinations, then you are at the right place. That means we are giving you the quality education so that you can crack these examination. Basically the school examination along with the NTSC, NSC, JS, PROMA, and that is for you all, right? If you want DBP and study material, you can access them through our Telegram channel. What you need to do is you need to write this TTB010 in the search box of the Telegram channel app, sorry, right, not the channel is this only, right. Then only drop down list of the channels appear for our class 10, then you can join that channel. You can access all the DPPs and study material along with the notifications of the video classes. Alright, कि भाई कब कौन सा टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी. Alright, now see, this is the thing, actually this is the team which is going to help you a lot, because this is the team which is working for you all. We are providing you the quality lectures, right, and these are definitely free of cost. So basically you can watch these video lectures, you can learn from these video lectures, you can definitely crack your examination, right. So do your part and share these videos to all of your friends, family, relatives, right. Share it with all the persons you know, so that anybody who is unable to afford the quality education can watch these video lectures and crack the goals he wanna achieve. Alright, so that is the main thing, because we are like the this is the cause, like the helping cause, right. Now see, in accordance to that हम लोगों ने ये जो quality lectures है, ये तो video lectures आपको provide किए ही हैं. Along with that we have some another things for you all. If you are serious, then you can definitely join them. Alright, so for that you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. So if you go on that website www.talkingtextbooks.in, then what you are going to get, you will be getting the packages, the full package and definitely the test series one. So basically the full package is going to give you not at all that much, but all the necessary things you need to crack the examination. So if you want, definitely there are some parts you need to crack the examination, right. Let's say that's the studying part, right. You will be needing the lectures, the study material, right. Then the homework part, right, and then the testing part. That is the main thing we have included. So you are going to get the comprehensive study material along with the recorded and live classes, homework submission, bi-weekly quizzes and periodic test papers. So below these two things are for the testing part, above these two things are the studying part, and middle one, the homework submission, is the doing homework submission part. Alright, so basically you can do that. You can definitely join it if you want to know that, if you want to do, right. So basically that is a full package. And अगर आपको सिर्फ testing part के लिए enroll करना है, then you can join the test series. You will be getting the periodic test papers, recorded and live classes, bi-weekly quizzes. So basically देखो testing part में सबसे important क्या होता है कि तुम्हें एक तो ये पता चले what is the pattern of the paper, right, कि भाई तुम जिस पेपर को फाइट आउट करना चाहते हो, तुम जिस पेपर को अचीव करना चाहते हो. So basically उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उस पेपर पैटर्न को जानना कैसा होता है, फैमिलियर होना उससे, ताकि तुम जब फाइनल एग्जामिनेशन दो तो तुम्हें तो बिल्कुल फैमिलियर लगेगा कि भाई ये तो वही पेपर पैटर्न है जो हम लोगों ने स्टडी किया है, राइट. सो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको और चीज़ों में बहुत हेल्पफुल मिलेगी, आपका स्पीड, एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी.
ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट. तो बेसिकली इस वजह से हम लोगों ने इन सब फीचर्स को इंक्लूडेड किया है. सो इफ़ यू वांट टू बाय दैम यू कैन यूज माय कोड CY Live over there, so that you can get a 30% discount of on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you are just want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. Alright, and that would be so cool if you really call us, so that all your queries will be resolved and all your doubts regarding these packages will be resolved. So make sure you do that, right? Now it is the promise section. Alright, promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes along with the revision. So making sure that you are going to revise every single time. Alright, that is the main thing. Every single day you need to revise, because revision is the key to success. Got it? इसको तो बस दिमाग में बिठा लो तुम लोग, बिल्कुल छाप लो कि रिविजन इज द की टू सक्सेस. इफ यू डू नॉट रिवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर गोल. गॉट दैट? चलो अभी हम देखते हैं आज का हमारा मेन लेक्चर. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉज. ठीक है. सो बेसिकली द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द रिफ्रैक्शन. Number one thing, we will be like learning the phenomena. What is it? How it behaves? Causes of refraction, effects of refraction, laws of refraction. So basically we are going to see all of these subtopics. All right. लेकिन before that हम लोग ने questions नहीं किए थे. So let me take you to the slide जिसमें हम लोग question करने वाले हैं. All right. चलो. तो this is the first. किधर है? ये देखिए. This is the first question in front of you all. Alright, so let me choose my pen. Alright, देखो ये तुम्हारे सामने है, ये पहला क्वेश्चन है. रीड दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम लोगों ने ऑलरेडी इसको सॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी तुम्हें दे चुकी हूँ. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो question states, in which kind of mirrors, plane, concave or convex, can you get a virtual image of an object placed in front of it? इन तीनों मिरर्स में से कन्वेक्स, कनकेव और प्लेन मिरर, इन तीनों मिरर्स में से ऐसा कौन सा मिरर है जिसके अंदर यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? वर्चुअल इमेज. यू आर गोइंग टू गेट दी वर्चुअल इमेज. ऐसा कौन सा इन तीनों में से जो है मिरर है जिसमें तुम्हें वर्चुअल इमेज मिलने वाला है? सो टेल मी विच वन. एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो प्लेन मिरर तो भाई सबसे पहले आता है. ये बात सबको पता है भाई, प्लेन मिरर में तो हमें हमेशा वर्चुअल ही मिलने वाली है इमेज. सो प्लेन मिरर तो इसका आंसर है. ठीक है कि भाई हाँ, प्लेन मिरर में ज़रूर हमें वर्चुअल इमेज मिलने वाली है. ठीक है. अगर हम कनकेव की बात करते हैं, कनकेव में एक केस ऐसा है जहाँ पे हमें वर्चुअल मिलती है. सो yes, we can get that virtual image, right? We can get that if we follow according to that you can say case, right? So we can get concave this virtual image in concave mirror also, and we all know that convex mirror में भी हमें कैसी मिलेगी? virtual मिलती है. ठीक है. तो बेसिकली कन्वेक्स लिखना है यहाँ तो, राइट. तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो प्लेन में तो हमेशा आपको जो है वर्चुअल मिलेगी, कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल मिलेगी, कनकेव का एक केस ऐसा है जहां हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, राइट. सो बेसिकली कभी ना कभी तो हम तीनों से ही वर्चुअल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं बताया, यू ऑलवेज गेट अ वर्चुअल इमेज. तुम सोचोगे कि भाई कनकेव को यहाँ क्यों डाला गया, क्योंकि सिर्फ देखो हो सकता है कि सिर्फ एक ही केस में हमें ऐसा मिले, बल्कि है भी, राइट. सिर्फ एक ही केस में हमें कनकेव के एक ही केस में हमको वर्चुअल इमेज मिले. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा हुआ है. अगर यहाँ पे लिखा होता कि भाई तीनों मिरर में से ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें हमेशा ही हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, तो ज़रूर हम प्लेन और कन्वेक्स को लिख देते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया. इसमें बोला है कैन यू गेट अ वर्चुअल इमेज. कभी ना कभी तो मिलेगी. हम लोग अगर उस केस को फॉलो करते हैं तो मिलेगी सही, राइट. दैट इज द मेन थिंग. सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, है ना. अब इसको तुम देखो. In a concave mirror, a real image of the same size as that of the object is obtained. Where is the object placed? So, according to the cases, और remember table में हमने formulate किया था, right? तो according to those cases, I am making sure that वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है कि हम लोग
कब सेम साइज का जो है इमेज पता करेंगे, मतलब मिलता है कब हमें, वो सिर्फ तभी मिलता है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस में हम लोग बोल सकते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कनकेव मिरर स्पेसिफाई कर दिया है, और कनकेव मिरर आपको बड़ी इमेजेस भी देता है, इक्वल साइज की इमेजेस भी देता है, स्मॉल साइज की इमेजेस भी देता है, राइट। सो यहाँ पे आपको पूछा है सिर्फ सेम साइज का, सेम साइज कब मिलेगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कैन अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा कर सकते हैं। देखो कन्वेक्स मिरर के हमने 2 केसेस देखे थे, कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस देखे थे, और ये जो दोनों केसेस थे उन दोनों में ही हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रही थी, दोनों में ही हमें डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट मिल रही थी, एक में हाईली डिमिनिश मिल रही थी, एक में सिर्फ डिमिनिश मिल रही थी, राइट। अब यहाँ पे पूछा है कि कभी भी ये रियल इमेज बनाने वाला है क्या, नो इट विल नॉट, नेवर, दिस इज नॉट गोइंग टू मेक अ रियल इमेज। एक्चुअली हमेशा ये कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज ही देने वाला है, ठीक है। Question number 4. What is the sign of the object distance u when an object is placed before a concave mirror? Let me tell you, sign convention के according you are going to get this answer, ठीक है। sign convention जो हमने actually में last time सीखा था, right? तो that is totally based on the Cartesian system, जो हमने आपने coordinate system पढ़ा होगा, Cartesian plane वाला पढ़ा होगा, right? उसमें पॉजिटिव एक्सेस माइनस नेगेटिव एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस, ये चीज़ें हमने स्टडी की। सो बेसिकली इसने क्या बोला है कि कनकेव मिरर, लेट्स से दिस इज द कनकेव मिरर, ठीक है, इस प्लेस्ड बिफोर अ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के अगर बिफोर लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दैट इज u, तो इसका साइन, बिकॉज द पोल इज हियर, द ओरिजिन इज हियर, तो दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल या फिर ओरिजिन, राइट। सो इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, वो है न्यूमेरिकल, और उसके अंदर तुम्हें साइन कन्वेंशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ साथ पूरा देखने वाले हैं कि भाई फॉर्मूला, जो मिरर फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम सीखा था, उसे यूज कैसे करना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो सबसे पहले तो मैं एक, देखो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटा सा एक रफ डायग्राम कोने में बना लो, पेंसिल से बना लो, ठीक है, उसको इरेज कर देना बाद में, बट आप रेफरेंस के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करो कि आप हमेशा एक छोटा सा रफ फिगर वहाँ पे बनाएं, ठीक है, उससे सिंप्लिसिटी हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी वही काम कर रही हूँ, एक छोटा सा रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ। सो आई हैव मेड अ कनकेव मिरर हियर, ठीक है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। इसने बोल दिया है ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर है, मतलब C और P के बीच में, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में कहीं 12 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, दिस इज O ऑब्जेक्ट, सो दिस इज U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा मिरर से, U होगा, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो U इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख दिया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तुम्हें पोजीशन बताना है इमेज का, क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है, क्या क्या नहीं है, लेट मी राइट दैट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो यहाँ पर है हमारा, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लिखा हुआ है दैट इज U, ठीक है, ये कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कनकेव मिरर का पोल है, एज यू कैन सी हियर द पोल, ये जो पोल है ना बेचारा, ये पोल यहाँ से लेके वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, राइट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, राइट।
तो ये वाला डिस्टेंस तो हमने क्या लिया था, नेगेटिव लिया था, इट इज लाइक द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस 12 इज गोइंग टू बी द -1, ठीक है। तो देखो ये -12 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और वैल्यू दी गई है, और वो क्या दी गई है, दैट इज दी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, दैट इज 16 सेंटीमीटर। अगेन ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हम ये बात जानते हैं कि भाई कनकेव के फ्रंट में होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके फ्रंट में है तो वो डिस्टेंस भी कैसी होगी, नेगेटिव, वो भी नेगेटिव होगी, राइट। तो वी आर गोइंग टू गेट दैट डिस्टेंस ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो वी आर गोइंग टू गेट द -16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब याद करो, मैंने तुम्हें एक वो बताया था, एक रिलेशन बताया था, जब मैंने तुम्हें बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, राइट। ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी। अब क्योंकि 16 सेंटीमीटर हमें आर की वैल्यू दी है, माइनस का 16 सेंटीमीटर हमें आर की वैल्यू दी है, सो वी कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ हियर, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, माइनस का 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन पता है क्या थी, कि मैंने एफ क्यों कैलकुलेट किया, वो इसलिए बिकॉज तुम्हें पता करना है पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इसका मतलब तुम्हें पता करना है वी, पोजीशन ऑफ द इमेज। तुम्हें यू पता है, तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, और तुम्हें फोकल लेंथ का हिंट दिया है। सो यू हैव टू थिंग्स हियर एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वन थिंग हियर। समझ में आ रही है? दैट इज वाई दो चीजें तुम्हारे पास हैं ऑलरेडी। व्हाट आर दोज, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ, एंड देन यूजिंग द मिरर फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज। सो लेट्स डू दैट, ठीक है। फोकल लेंथ हमारे पास आ चुका है, so let me calculate the image by position of the image by using the mirrors formula. What was the mirrors formula? वो क्या था, 1/v plus 1/u is going to give you 1/f, ठीक है। अब ये जो v है ये हमें नहीं पता कि क्या साइन का है, ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तुम ये देखो ध्यान से कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 16 सेंटीमीटर पे है, हमें यहाँ पे फोकल लेंथ मिल गया है जो कि कितने सेंटीमीटर पे है, 8 सेंटीमीटर पे है। ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमें सी एंड एफ पे मिली है, तो इसका मतलब इसका इमेज कहाँ मिलना चाहिए, बियॉन्ड सी मिलना चाहिए, डेफिनेट सी बात है, बियॉन्ड सी मिलना चाहिए, राइट। यही हमें ट्रिक यूज करनी है। वो जो टेबल हमने सीखा था वो हमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ हमें करेक्ट आंसर्स देगा, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया है कि भाई ये तो सी एंड एफ के बीच में है, दैट मीन्स बियॉन्ड सी विल बी द इमेज। तो मतलब इमेज जो डिस्टेंस हमारा आने वाला है, ये पोजीशन ऑफ द इमेज वी का वैल्यू आने वाला है, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। एंड बिकॉज क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस के साथ आना चाहिए हमारा आंसर, साथ ही साथ बियॉन्ड सी है, मतलब इस 16 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करें, एक अंदाजा हमें मिल गया कि 16 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए और नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स कैलकुलेट एंड चेक आउट कि भाई हम सही सोच रहे थे कि नहीं, ठीक है। v का वैल्यू 1/v, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1/f माइनस का 1/u। अब देखो 1/f, f का वैल्यू माइनस का 8 माइनस 1/u, u का वैल्यू माइनस का 12, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस जगह पे तुम लोग अगर हम लोग यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, राइट। ये दोनों जो है माइनस इंटू माइनस विल बी गोइंग टू प्लस, तो ये प्लस बन जाएगा, राइट। लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 8 × 12, जस्ट लाइक दी एलसीएम, 8 × 12, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इट वुड बी लाइक माइनस का 12, यू कैन सी हियर माइनस का 12, ठीक है, प्लस का 8,
दैट वुड बी द करेक्ट थिंग। ठीक है, तुम्हें साइन का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस का 8 है, ये माइनस का जो माइनस का साइन है ये मैं ऊपर लेकर जा सकती हूँ बिकॉज ये पूरा फ्रैक्शन का साइन होगा, राइट, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस होल फ्रैक्शन 1/8 वुड बी द -1। अगर मैं यहाँ इस माइनस की बात करूँ और 1/12 की बात करूँ, 1/12 को भी मैं पूरा माइनस बना सकती हूँ, राइट, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव में है। सो होल साइन वुड बी ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव विल बिकम प्लस। तो जस्ट इसी वजह से हमने इस ऊपर वाले टर्म को प्लस बनाया है एंड देयर इज -8, जो कि यहाँ पर माइनस साइन है जिसकी वजह से, और जब हमने इसे एलसीएम लिया है सो इट बिकम्स नेगेटिव क्योंकि माइनस का साइन था उसके साथ। ऑलराइट, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग 8 वी आर गोइंग टू गेट 1/v एज -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 into 12. So definitely you can do that, ठीक है। So it is like -24. Alright, यहाँ पर तुम देख सकते हो 1/v का वैल्यू माइनस का 1/24 है। इफ यू वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ v यू कैन डेफिनेटली रेसिप्रोकेट इट। तो जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे दोनों, मतलब इस v को भी का भी रेसिप्रोकल करेंगे एंड इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट v एज -24 सेंटीमीटर। सो दिस इज द v है, वैल्यू ऑफ v। लिस्ट देखो ध्यान से, नेगेटिव है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दूसरा चीज क्या है 24 है, मतलब 16 से तो ज्यादा है, राइट। सो डेफिनेट सी बात है कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट हुआ है, राइट, साइन बहुत ही सही आया है, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली नोट इट डाउन क्योंकि हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। दिस इज द पोजिशन ऑफ द इमेज। Alright, now let's move on to the refraction of light. अब हम लोग इस फिनोमेना को स्टडी करते हैं, what is that refraction of light here, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसका क्या मतलब है, वैसे तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवा चुकी थी, राइट, कि जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है, ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली में, लिटिल बिट जो पाथ है लाइट अपना चेंज कर लेती है, ठीक है। तो मतलब अगर सीधे जा रही थी तो हल्का सा चेंज करके थोड़ा टेढ़े जाने लग जाती है, ठीक है। जाती तो वैसे भी वो सीधा ही है बट लिटिल बिट ऑफ पाथ चेंज, राइट। तो ये जो फिनोमेना है, द चेंजिंग ऑफ द path when it goes from one medium to the another, that phenomena is known as the refraction. You can see when it passes from one transparent medium to another, the direction of its path changes at the interface of the two media, ठीक है। This is called the refraction of light. Right at the point, उस point पे जाके जहाँ पे interface है, you can say the path of the light changes and this changing path, मतलब ये bending जिसकी वजह से हो रही है इसे हम bending बोलते हैं, because light क्या करती है, हल्का सा bend हो जाती है, ठीक है। तो अपने जिस path पे जा रही थी like that, देखो कैसे हो जाती है, let me tell you. So देखो अगर जैसे ये है एक इंटरफेस, ठीक है, ये है एक इंटरफेस, मतलब दिस इज द सरफेस जिसके नीचे कोई मीडियम 2 है, ठीक है, और इसके ऊपर मीडियम 1 है, ठीक है। तो मीडियम 1 मीडियम 2, अब अगर लाइट कुछ इस तरीके से फॉल होती है तो ये क्या करेगी, कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, मतलब इट वुड बी लाइक लिटिल बिट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, लिटिल बिट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो बेसिकली इट बेंड, ये मेन चीज है, व्हेनेवर इट गोज फ्रॉम one medium to another it bends and that phenomena, that the cause, you can say that phenomena, ठीक है, that is known as the refraction of light, that bending is known as the refraction of light, ठीक है। अब देखो the path along which the light travels in the first medium is called the incident ray. ये है जो है air बोला गया, you can take that is the medium 1, this is glass, you can take that as medium 2. तो जिस मीडियम में पहले आ रही है, मतलब द मीडियम फर्स्ट मीडियम, ठीक है, वो जो फर्स्ट मीडियम होता है दैट इज एक्चुअली जिस उसके अंदर जो लाइट रे आती है दैट इज द इंसिडेंट वन, मतलब वो क्या कर रही है,
ये जो मीडियम का इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस बोले तो वो सरफेस जो कि दो मीडिया को सेपरेट कर रही है, ठीक है। सो इस इंटरफेस पे फॉल होने वाली जो लाइट है, लाइट रे है, दैट इज द इंसिडेंट वन, ठीक है। और जो सेकेंड मीडियम में एंटर करती है दैट कैन बी टेकन एज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जैसे हम लोग ने रिफ्लैक्शन में स्टडी किया था, बिल्कुल एज इट इज है। रिफ्लैक्शन में क्या स्टडी किया था? रिफ्लैक्शन में हमने ये स्टडी किया था कि भाई इंसिडेंट रे जो फॉल होती है मिरर पे, राइट, और जो वापस चली जाती है रिफ्लेक्ट होके, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, जो इस सरफेस पे फॉल हो रही है दैट इज इंसिडेंट रे, और जो इस सरफेस से अंदर चली गई है, मतलब सेकेंड मीडियम में एंटर कर गई है जो लाइट रे, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पर भी एक नॉर्मल होता है, और ये नॉर्मल अगेन हम लोगों ने इस प्लेन के, यू कैन से इस सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे हम इसे बनाते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये हमारे थ्रू बनाई गई ही लाइन है। अब ये बात भी हमें पता है कि भाई ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस वुड बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये जो आई है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी आपको पता चल गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी आपको पता चल गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट थिंग जो कि हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ दी लाइट की कि आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, इंसिडेंट रे है मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। तो जो लाइट रे किस तरीके से जा रही है, यू कैन सी हियर this light ray is going like this, at this point it is bending and now it is going like this। तो फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है कि लाइट रे क्या करती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, यू कैन सी हियर, ठीक है। जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, नॉर्मल की तरफ चली गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाला एंगल छोटा हो गया, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपैरिजन में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल आई है वो बड़ा एंगल हो गया है, और एंगल यू कैन से जो आर है वो छोटा हो गया है, ठीक है। तो देखो व्हेन अ लाइट रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर कोई एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है जैसे कि एयर, मैं तुम्हें बताऊंगी व्हाट इज रेयर मीडियम एंड व्हाट इज डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जब कभी भी एयर से ग्लास में जाती है लाइट, या फिर यू कैन से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, सो व्हाट हैपेंस, क्या होता है, लाइट कहाँ चली जाती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, ठीक है। तो व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, ये किसकी तरफ बैंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, ठीक है। एंड क्योंकि अब वो बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ, you are going to get this angle of incidence greater than the angle of refraction, क्योंकि वो तरफ बेंड हो गई तो एंगल छोटा हो गया, है ना। एंगल छोटा होने से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी छोटा हो गया, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग हियर। सेकेंड केस में देखो क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रही है लाइट, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंसिडेंट रे है वो आई एंगल से आ रही है, ठीक है। जो बाहर जा रही है, बाहर दूसरे सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही है, तो उसको हमने बोल दिया रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे देखो जब कभी ऐसा होता है कि कोई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट नॉर्मल से दूर चले जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ग्लास से एयर में जाने पे ये जो नॉर्मल लाइन है इससे दूर चली गई है लाइट रे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब की बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया, सही बात है, और इंसिडेंस जो है वो कम हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है। वहीं पे जो है हमारा तीसरा केस, ठीक है। तो ये जो तीसरा केस है इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल से बिल्कुल जो है डाल रहे हैं, नॉर्मल से मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जो सरफेस है बिल्कुल 90 डिग्री पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो क्या होगा, लाइट बिल्कुल सीधे चले जाएगी विदाउट एनी चेंज इन इट्स पाथ, ठीक है। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएगी,
तो इट वुड बी लाइक दिस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एंगल आई एंगल आर दोनों के दोनों 0 डिग्री के, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली नोट दिस डाउन, तीनों केसेस आप लोग लिख लीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू दैट। ऑलराइट, अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उनका एक्चुअली में क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखो, ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब होता है कि उसके पहले हम मीडियम के मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। मीडियम का मतलब कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके अंदर से लाइट पास हो सके, ट्रांसमिट हो सके, जा सके, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा मीडियम है जो कि कैसा है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है, सो वी कॉल दैट थिंग अ मीडियम। जैसे कि अगर हम बात करें एयर की, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट है और उसमें से लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। तो एयर भी एक मटेरियल है जिसकी वजह से हम एयर को मीडियम बोल देते हैं। अब उसी तरीके से दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास, वो भी एक ट्रांसपेरेंट है, राइट, वो भी एक मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, सो वी कॉल दैट ग्लास एज अ मीडियम टू, ठीक है। तो अ मीडियम इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच लाइट इज ट्रांसमिटेड। तो हम मीडियम किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझो, हम मीडियम उस मटेरियल को कहते हैं, उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर से लाइट जा सके, ऑलराइट। अब तुम नेक्स्ट बात देखो, एवरी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज प्रॉपर्टी नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, देखो मैं बार बार ट्रांसपेरेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर ट्रांसलूसेंट होता, ओपेक ऑब्जेक्ट होता तो लाइट जा ही नहीं पाती, आधी लाइट चल जाती, आधी नहीं जा पाती ट्रांसलूसेंट के केस में, और ओपेक के केस में तो बिल्कुल नहीं जा पाती लाइट, ठीक है। दैट इज वाई जब भी हम ये लाइट से जुड़े हुए फिनोमेना देखते हैं ना, वो उसमें सब में हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडिया लेते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोला जाता है ऑप्टिकली डेंस, मतलब ऑप्टिक डेंसिटी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी उसका एक प्रॉपर्टी होता है, हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब एक अगली बात देखो, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अगर मैं किसी एक मीडियम की बात कर रही हूँ, अगर मैं एयर की बात कर रही हूँ, तो एयर का जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगा वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली एक प्रॉपर्टी है, हर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पास, हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के पास ये ऑप्टिकल डेंसिटी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उसमें से लाइट जा सकती है। बट ये किससे रिलेटेड है, ये है स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड। मतलब स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई, कम हुई, कितनी कम हुई, ये किस पे डिपेंड करेगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं, वैक्यूम में सबसे तेज होती है स्पीड ऑफ लाइट, राइट। एयर में आके हल्की फुल्की उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, मतलब लाइट की स्पीड हल्की फुल्की चेंज हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों हो जाती है चेंज, बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिकल डेंसिटी, समझे। अब देखो, इफ the optical density of a transparent medium is low, then the speed of light in that medium is high, ठीक है। such a medium is known as optically rarer medium। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है किसी भी मीडियम की, अगर वो लो होती है, बहुत ही कम होती है, दैट मीन्स तेजी से लाइट उसमें से जा सकती है, हाई स्पीड को यूज कर सकती है, राइट। दैट इज द थिंग जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। मतलब ऐसा मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऐसा मीडियम जिसके अंदर से लाइट बहुत तेज स्पीड से जा सके, डेफिनेट सी बात है। तो एयर जो हुई वो क्या हुई, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम हुई, बिकॉज लाइट जो है, मतलब लाइट जो है वो बहुत तेज स्पीड से एयर के अंदर से जा सकती है, दैट इज वाई, ठीक है। अब अगर हम अगली बात करें तो देख सकते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट, ठीक है। अब जिसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो एयर सबसे रेयरर मीडियम हुआ, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में सबसे फास्टेस्ट स्पीड में जाती है लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में थोड़ी बहुत स्पीड कम हो जाती है, मीन्स बहुत ही नेग्लिजिबल, बट येस कम हो जाती है। सो वी कैन टेक दैट एज दी
यू कैन से स्टिल इट इज़ अ वेरी फास्ट, है ना, स्टिल वो बहुत फास्ट होती है। और हम हमेशा क्या करते हैं कि क्योंकि बहुत ही कम होती है, मतलब जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ही लेस जो है चेंज होता है उसमें, तो दैट इज़ वाई कि क्योंकि बहुत ही कम चेंज होता है, दैट इज़ वाई हम उसको ऑलमोस्ट सेम लेते हैं। ऑलराइट, तो जब हम लाइट में की बात करेंगे इन दी स्पीड ऑफ यू कैन से इन दी मीडियम, एयर का मीडियम, तो उसमें हम बोलने वाले हैं दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ वेरी वेरी यू कैन से फास्ट। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट बहुत तेजी से जा सकती है, वो हुआ ऑप्टिकली रेयर मीडियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, बट बिफोर दैट ये तो सेम ही लिखा हुआ है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करते हैं। इफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज हाई देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम इज लो, सच अ मीडियम इज नोन एज द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो मतलब ऐसा मीडियम जिसके अंदर से जब लाइट जाने लगे तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाए, ठीक है, उस वक्त हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, तभी तो स्पीड नहीं जा पाई, तभी तो लाइट जो है अपनी तेज स्पीड से नहीं जा पाई। ठीक है, तो अगर लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है किसी भी केस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी आपको पता चला कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब क्या हुआ, मतलब लाइट उसमें तेजी से जा सकती है। ठीक है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या हुआ कि लाइट थोड़ा स्लो हो जाएगी, उसमें स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो जितना देखो, जितना कम होगी लाइट का स्पीड, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो डेंसर मीडियम होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। अब क्योंकि अगर हम बात करें, लेट्स से कंपेयर करते हैं एयर ग्लास, एयर वाटर ग्लास, हम ऐसे कर लेते हैं कंपेयर। ठीक है, तो लेट मी टेल यू द नेक्स्ट थिंग, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं एयर, ठीक है, और वाटर, ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं ग्लास। सो देखो एयर क्या हुई, एयर तो क्या है, गैस है। ठीक है, वाटर क्या बन गया, एक लिक्विड बन गया, मतलब अगर हम जनरल भी बात करें तो भी, और जो ग्लास है वो चला गया सॉलिड की तरफ। ठीक है, अब तुम खुद से सोचो, ठीक है, एयर के अंदर जो लाइट है वो अपनी तेज स्पीड से जा सकती है, बहुत ही लिटिल बिट ऑफ चेंज आएगा, बट वो सबसे तेज जाने की कोशिश करेगी और वो जा भी सकती है, राइट, इन दोनों के मुकाबले तो डेफिनेटली जाने वाली है। सो दिस एयर इज कंसिडर्ड एज द रेयरर मीडियम। जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दीज टू, तो एयर इज द रेयरर मीडियम। ठीक है, वहीं पे अगर मैं ग्लास, अब देखो क्या होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो दैट वुड बी अ पेयर ऑफ मीडियम ओवर देयर। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वहाँ पे क्या होगा, पेयर होगा, मीडियम 1 मीडियम 2 का पेयर होगा। तो यू कैन सी, अगर मैं ग्लास एयर और वाटर का जो है पेयर बनाती हूँ, दैट मीन्स अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो वाटर क्या हुआ, डेंसर हो गया, एयर क्या हुआ, रेयरर हो गया। तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि लाइट जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, बिकॉज यू नो विच वन इज रेयर एंड विच वन इज डेंसर। उसी तरीके से अगर इन दोनों की बात हो, ठीक है, इन दोनों की बात हो, अगर मैं वाटर और ग्लास की बात कर रही हूँ कि भाई पानी के अंदर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, पानी के अंदर से ग्लास में जा रही है लाइट रे, तो एट दैट मोमेंट, ठीक है, उस वक्त तुम क्या डिसाइड करोगे कि कौन इसमें से रेयर है, कौन सा डेंसर, हमें पता चल जाएगा, वाटर इज द रेयर मीडियम फॉर दिस, यू कैन से दिस पेयर, एंड ग्लास इज द डेंसर वन। ठीक है, वहीं अगर हम एयर और ग्लास की बात करें, एयर और ग्लास की बात करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा एयर तो रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है। जब तुम्हें ये बात पता है कि अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो तुम्हें ये बात पता है कि भाई लाइट कहाँ से कहाँ बेंड हो रही है। अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, और यू कैन से अगर वो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो अब तुम खुद से पता कर सकते हो कि भाई लाइट कहाँ से कहाँ जाने वाली है, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो कहाँ बेंड होने वाली है ये तुम्हें पता है। ठीक है, चलो अब देखो कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन इज द स्पीड ऑफ द लाइट, द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। देखो जितना ज़्यादा ये जो बेंडिंग हो रही है, ये जो बेंडिंग हो रही है लाइट की, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है।
और ये ऑप्टिकली रेयर और डेंसर किससे रिलेटेड है? स्पीड ऑफ द लाइट से। सो बेसिकली अगर किसी मीडियम में जब लाइट एंटर कर रही है और उसका स्पीड में अचानक से कमी आ जाती है, लाइट की स्पीड में कमी आ जाती है, एट दैट टाइम देयर इज दिस बेंडिंग, ठीक है। तो जैसे ही लाइट किसी इंटरफेस पे, किसी टू मीडिया के इंटरफेस पे फॉल करती है, वैसे ही, क्योंकि उसी वक्त वो बेंड होती है, एट द सेम टाइम उसको एक अलग मीडियम मिलता है, राइट, एंड एट दैट टाइम जब उसे एक अलग मीडियम मिलता है, उस वक्त क्या हो रहा होता है, वो एक रेयर से डेंसर या फिर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती है। देयर इज अ चेंज इन द मीडियम ड्यू टू विच हम ये बात जानते हैं कि हर एक मीडियम में डिफरेंट स्पीड्स होती है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली देयर इज सडन चेंज इन दी स्पीड, या तो बढ़ जाएगी स्पीड या तो कम हो जाएगी स्पीड, तो देयर वुड बी अ सडन चेंज इन द स्पीड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन स्पीड, जो लाइट है वो ऐसा बिहेव करेगी कि वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। सो दिस बेंडिंग इज डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग हियर। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मैंने तुम्हें बोला कि भाई रेयर से डेंसर जाते वक्त, ठीक है, अभी देखो मैं तुम्हें एक और बात बता देती हूँ। देखो, अगर ये है इंटरफेस, ये है रेयरर मीडियम, ठीक है, और ये है डेंसर मीडियम, तो लाइट रे ऐसे आ रही थी, ठीक है, ये नॉर्मल, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो यहाँ पे लेस स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, कम हो रही है ना स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे रेयर है तो यहाँ पे हाई स्पीड ऑफ लाइट होगा, ठीक है। ये बेंडिंग कितनी ज्यादा हुई कितनी कम हुई इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना डेंसर मीडियम अभी आगे आने वाला है, या फिर आ चुका है, या फिर उस जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। जितना ज्यादा स्पीड कम होगी उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगा, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो लाइट कहाँ चली जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल चले जाएगी। अगर स्पीड इंक्रीज हो जाती है, सेकंड मीडियम में आने के बाद स्पीड इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसको रेयरर मीडियम मिलता है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। दैट इज द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि जब ये रिफ्रैक्शन हो रहा होता है तो क्या क्या चीजें चेंज होती है, बिकॉज लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, राइट, तो उसके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसके पास वेवलेंथ भी होती है, सब कुछ होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेनेवर दैट थिंग्स हैपन, दैट रिफ्रैक्शन हैपेंस, ठीक है। तो पहली चीज रिफ्रैक्शन क्या है? डेविएशन होता है कि भाई लाइट अपने पाथ से हल्का सा डेविएट हो गई, हल्का सा भटक गई, चेंज कर लिया उसने अपना पाथ, लाइक दैट, ठीक है। व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज एंड देयर इज अ चेंज इन बोथ वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ लाइट। डेफिनेट सी बात है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, सबसे पहला फैक्टर, राइट। वेवलेंथ चेंज हो रहा है, ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है। थर्ड आप देख सकते हैं, सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हुई? बिकॉज दैट इज द, यू कैन से द कंडीशन ऑफ द, यू कैन से द सोर्स, राइट। तो ये सोर्स पे डिपेंड करती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी सी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज मैंने तुम्हें बताया था कि जब कभी भी दो मीडियम्स ऐसे होते हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही होती है, तो तीन फिनोमेनास होते हैं। थोड़ी बहुत लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाती है, और थोड़ी बहुत रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज कुछ तो इंटेंसिटीज यूज हो गई, right? The intensity of the refracted ray is less than that of the incident ray. It is because there is a partial reflection and absorption of light at the interface. तो तुम्हें जो इंटेंसिटी मिलेगी रिफ्रैक्टेड रे की, तो वो कैसी मिलेगी? हल्की सी कम मिलेगी, बिकॉज देयर आर द अदर फिनोमेना विच इज टेकिंग अवे द इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के? देयर आर वेरियस इफेक्ट्स वैसे तो, ठीक है। इफेक्ट्स का मतलब देखो, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी बोल सकती थी भाई, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, बट एक्चुअली ये रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स नहीं है। ऐसी कई जगहों पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, हम तो उस चीज को पहचान रहे हैं, राइट। तो यू कैन से द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से यू आर गोइंग टू सी सम वियर्ड थिंग्स। जैसे सबसे वियर्ड है द, यू कैन हैव यू एवर चेक्ड कि भाई तुम एक ग्लास में पानी, क्लियर पानी के भरे हुए ग्लास में, ठीक है, व्हाट यू डिड, लेट पुट अ पेंसिल इन दैट, थोड़ी देर क्या आप तुरंत डालते ही देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? एट द इंटरफेस जो पेंसिल है वो हल्की सी बेंड हो गई है,
है ना, हल्की सी बेंड हो गई है, तो उसका शेप आपको बिल्कुल एक सीधी पेंसिल की तरह नहीं दिखाई देगा, आपको हल्का सा बेंड दिखाई देगा। रीजन रिफ्रैक्शन, बिकॉज क्योंकि लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है, लिटिल बिट ऑफ पाथ से चेंज हो जाती है, डेविएट कर जाती है, ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि वो डेविएशन होता है तो आपको ऐसा लगता है कि पेंसिल टेढ़ी हो गई है, बट एक्चुअली में वो होती नहीं है, यू आर जस्ट गेटिंग एन इल्यूजन ओवर देयर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, लेट्स सी दैट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमने एक पेंसिल जो है वो मानी है, ठीक है, तो दैट इज द पेंसिल हियर, ठीक है, ये है हमारी पेंसिल, ऑलराइट। अब आगे चलो, यहाँ पे पी क्यू इज द मेन पेंसिल, ठीक है। अब देखो, लेट ए क्यू पोर्शन ऑफ द पेंसिल बी डिप्ड इन वाटर एज शोन इन द फिगर। तो हमने यहाँ पे देखा है पानी के अंदर ये ए से लेके क्यू, ये वाला पोर्शन जो है पानी के अंदर है, डूबा हुआ है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, rays of light from the tip Q of the pencil bend away from the normal as they go from water to air that is denser to the rarer medium। जो लाइट रेज इस टिप से आ रही हैं, हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, तो वो कैसे जाएंगी, वो जा रही हैं फ्रॉम दिस वाटर टू द एयर, डेफिनेट सी बात है। अब जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो हमने क्या सीखा था, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो क्या होगा, bend away from the normal, they are going to bend away from the normal, ठीक है। तो तुमको क्या लगेगा एक्चुअली में कि ये जो Q है यहाँ पे, जो एक्चुअली में होना चाहिए, देखो ये जो Q है, as you can see here these are the straight parts, right। जो B पॉइंट है यहाँ से हमें आती हुई लगेगी, मतलब you are going to see the apparent position, alright। तो देखो, these rays appear to come from a point B, thus the dipped portion of the pencil appears as AB। देखो ये वाली जो लाइट रेज हैं, है ना, बेंड होगी, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ से लाइट रे गई, ठीक है, यू कैन सी दिस वन लाइट रे जा रही है, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस तरीके से जाएगी। यहाँ से दूसरी लाइट रे कुछ इस तरीके से जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट इज गोइंग लाइक दैट। हमें जो लाइट रे हमारी आंखों में दिखती है, राइट, वो हम क्या देख रहे हैं कि भाई वहां से लाइट आ रही है, राइट। सो जब हम इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे, जब हम बिल्कुल सीधा एक्सटेंड करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट अ पोजीशन हियर एज बी। दिस बी इज गोइंग टू बी सीन बाय अस, ये बी पोजीशन हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको जो पॉइंट का, पेंसिल का जो पॉइंट है वो आपको ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि वो ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज द मेन रीजन हियर, रिफ्रैक्शन डेफिनेट सी बात है, ठीक है, लाइट रेज बेंड हो रही है फ्रॉम डेंसर टू दी रेयरर मीडियम, तो आपको ऐसे उठा हुआ लगता है। इसी वजह से जो स्विमिंग पूल के बेस होते हैं वो भी आपको उठे हुए नजर आते हैं, मतलब आपको ऐसा कम डिस्टेंस लगता है फ्रॉम द लेवल, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर टू दी डेप्थ ऑफ दी यू कैन से पूल। लेकिन जब आप एक्चुअली में जाएंगे तो आपको असली जो है डेप्थ पता चलेगी, ऑलराइट। तो नेक्स्ट अभी देखो, नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड वन जो है, दैट इज दी वाटर टैंक या किसी भी स्विमिंग पूल, ठीक है, वाटर टैंक या फिर स्विमिंग पूल का डेप्थ, कि भाई वो कैसा है, या फिर उसका जो डेप्थ है वो ऊपर उठा हुआ तुम्हें नजर आता है, उसका जो बॉटम बेस है वो ऊपर उठा हुआ नजर आता है। द रीजन इज सेम, ठीक है, यहाँ पर भी जो है रीजन सेम है। तो यू कैन सी हियर, ये है नॉर्मल लाइट रे जो कि वापस चले जाती है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू सी, हमें तो बेस में देखना है ना कि भाई कितनी दूर है कितनी नहीं। इस बेस से जब लाइट रे आएगी बाहर तो वो क्योंकि वाटर से एयर में जाएगी, डेंसर से एयर में जाएगी, रेयरर में, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। सो इट इज लाइक अवे फ्रॉम द नॉर्मल हेयर, ठीक है। ये जो लाइट रे नॉर्मली बैंड हो रही है, यहाँ से हम देखेंगे, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, आई एम गोइंग टू गेट अ पॉइंट हियर, तो इमेज तो यहाँ दिखाई देगी, मतलब ये बेस मुझे इतना ऊपर दिखाई देगा, और एक्चुअल में वी आर नॉट इवन गोइंग टू गेट एक्चुअल बेस ऑफ द स्विमिंग पूल हियर, हमें एक्चुअल बेस पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज हम तो उसका अपैरेंट छोटा बेस देख रहे हैं, मतलब ऊपर उठा हुआ बेस देख रहे हैं, राइट। दिस इज द रीजन, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन हियर, ठीक है। यही केस होता है भाई, हमें शैलो नजर आता है वाटर टैंक या फिर कुछ भी जैसे स्विमिंग पूल का बेस, राइट, ठीक है। अब देखते हैं हम अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। सो मैं आपको बताती हूँ, डू यू नो दैट कि आप जो सनराइज देखते हैं वो उस वक्त नहीं होता, वो 2 मिनट बाद सनराइज होता है, लेकिन आपको पहले नजर आ जाता है। एंड इवन 2 मिनट बाद जो तक आप देखते रहते हैं, मतलब सनसेट के भी 2 मिनट बाद तक आप देखते रहते हैं, आपको सनसेट पता नहीं चलता, क्यों? द अपैरेंट पोजीशन, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू द एटमॉस्फेयर,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन इज विजिबल बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। ठीक है, कैसे होता है देखो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन है सन, सन अभी हॉरिजन के ऊपर नहीं आया है, सन अभी यू कैन से राइज नहीं हुआ है, अभी वो वहीं है, हम लोग देख रहे हैं, राइट। बट बिकॉज ऑफ दीज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे एयर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम लोगों को क्या लग रहा है कि भाई सूरज तो यहाँ आ गया, बट इट इज नॉट एक्चुअली देयर। तुम्हें ऐसा लगेगा यहाँ आ गया, तो एक्चुअली में सन अभी राइज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें लग रहा है कि तुम देख पा रहे हो सन को, राइट। तो दिस इज ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है, ऑलराइट। विद एल्टीट्यूड द डेंसिटी एंड हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर लेयर्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे एयर की लेयर, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ में, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अर्थ की सरफेस से, देयर वुड बी अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर, राइट। तो जिसकी वजह से हम लोग लेयर बाय लेयर क्या करें, डेंसिटी चेंज हो रही है, ड्यू टू विच जो नॉर्मल बेंडिंग होती है लाइट की, वो भी हर लेयर में चेंज होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग बहुत सारे रिफ्रैक्शंस होते हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं, ऑलराइट। द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सन एज ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर लेयर्स। देखो, यहाँ से आती हुई जो लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ से आती हुई, तो वो एक रेयर मीडियम में है, वैक्यूम में है, एंड देन यहाँ पे थोड़ा डेंसर, थोड़ा और ज़्यादा डेंसर, थोड़ा और ज़्यादा डेंसर, थोड़ा और ज़्यादा डेंसर, ऐसे करते करते वो बहुत ही रेयर से डेंसर 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 में आते जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दे बेंड मोर एंड मोर टूवर्ड्स द नॉर्मल। वो और भी हर एक लेयर के साथ दे आर लाइक बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऑलराइट। However, an observer sees an object in the direction of the rays searching his eye. लेकिन रेज की जो डायरेक्शन है, जो उसकी आंखों तक पहुंच रही है, बिल्कुल उसे वही दिखाई देगा। तो दिस इज द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन। उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं। वो क्या क्या चीजें हैं कि भाई, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि एयर एक ही जगह पे नहीं रहती है, वो फ्लो होते रहती है, राइट। तो जिसकी वजह से मूव होते रहती है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। सो टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, द सन विच इज एक्चुअली इन अ पोजिशन बिलो द हॉरिजन अपीयर्स इन द पोजिशन एस डैश अबव द हॉरिजन बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअल रिफ्रैक्शन। जहाँ पे वो नीचे है एक्चुअल पोजीशन में, उसे ऊपर दिखाई देता है। तो बेसिकली देयर इज ऑल्सो यू कैन से अपैरेंट पोजीशन सन की दिखाई देती है, राइट। तो आपको पता है ये जो अपैरेंट शिफ्ट होती है, ये करीब 0.5 डिग्री की होती है। ठीक है, तो मतलब सन जहाँ है उसकी 0.5 डिग्री ऊपर तुम्हें दिखाई देगा, ऑलराइट। सो इसी वजह से हम लोग सन को 2 मिनट पहले जो है देख पाते हैं, मतलब सनराइज होने के 2 मिनट पहले से ही हम देख पाते हैं सन को, और सनराइज होने के 2 मिनट बाद तक हम देख सकते हैं। ठीक है, देखते भी हैं बल्कि, इवन दैट इज। तो बेसिकली एक्चुअल सनराइज और सनसेट को मिलाएं अगर, तो हमें 4 मिनट्स एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है, राइट, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। उसकी वजह से और भी एक देख सकते हो आप, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आपको हमेशा ट्विंकल करते हुए स्टार्स नजर आते हैं। वाई इज इट सो, आपको क्यों ऐसा नजर आते हैं? क्योंकि देखो, पहले तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो डेंसिटी होती है एयर की, ठीक है, तो ये जो डेंसिटी होती है वो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते जाते कम होती है। ठीक है, तो और सन की स्टार की लाइट रेज आ रही हैं, तो वो धीरे 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 उनको ज़्यादा मीडियम मिलता है, मतलब ज़्यादा डेंसर मीडियम मिलता है। पहले रेयर से, वैक्यूम से वो एयर में आती है, फिर थोड़ा और ज़्यादा डेंसर होता है, फिर थोड़ा और ज़्यादा डेंसर होता है। तो देयर आर लाइक मल्टीपल रिफ्रैक्शन, सो द लाइट रेज बेंड मोर एंड मोर टूवर्ड्स दी नॉर्मल है देयर, राइट। तो इसी वजह से वो बेंड होती हैं, ऑलराइट। और डेफिनेट सी बात है, इसी वजह से जो स्टार का एक्चुअल पोजीशन होता है उसकी जगह पे आपको अपैरेंट पोजीशन दिखता है, अपैरेंट स्टार पोजीशन दिखता है। दैट मीन्स वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, जहाँ पे वो है उसके थोड़ा सा ऊपर तुम्हें नजर आता है। क्यों? क्योंकि देयर इज द बैंडिंग ऑफ द लाइट। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, लेयर्स आएंगी एटमॉस्फेयर की, वैसे वैसे देयर इज मोर बैंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो यू आर गोइंग टू गेट लाइक दिस। ठीक है, तो तुमको एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ दिखाई देती है, अपैरेंट दिखाई देती है, बट देयर इज नॉट एक्चुअली देयर। सो बेसिकली स्टार्स हम लोग कुछ ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी देखो टेम्परेचर डिफरेंसेस होता है, बाहर बहुत ही ठंडा रहता है, ऊपर के लेयर्स में काफ़ी ठंडा टेम्परेचर रहता है, हमारे जो अर्थ के सरफेस के आसपास का यू कैन से वो रहता है टेम्परेचर रहता है, वो थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है।
ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देयर वुड बी लाइक मूविंग अप ऑफ द एयर, ठीक है, वहाँ पे भी देखो डेंसिटी का चेंज वहाँ पे पाया जाता है। सो क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है, डेंसिटीज चेंज होती हैं, ऑल्सो एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हमें हमेशा ब्लिंकिंग नजर होती है, ठीक है, एंड दैट ब्लिंक इज नोन एज द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, ठीक है। ड्यू टू दीज वेरिएशंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ द एयर, द लाइट फ्रॉम द स्टार पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेरिक एयर चेंजेस इट्स पाथ फ्रॉम टाइम टू टाइम, and therefore the amount of light reaching the eye is not always the same, change होते रहती है, right, because of the movement of the air particles, the change in the variations of the refractive indexes, densities, right, that is why this increase or decrease in the intensity of light reaching the eye results in the change in the apparent position or the twinkling of the stars। तो जो क्योंकि कभी इंटेंसिटी हमारे आंखों में कम पहुंच पाती है तो हमें ब्राइट नजर आता है, फिर अगर कम इंटेंसिटी आती है तो वी गेट दैट कि भाई कम वहां पे है तो वो ट्विंकल होता है, कभी ज्यादा ब्राइट कभी कम ब्राइट, कभी ज्यादा ब्राइट कभी कम ब्राइट, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एंड इट नोन एज द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, ठीक है। नंबर 1 लॉ क्या कहता है, दैट द इंसिडेंट रे refracted ray and normal at the point of incidence lie in the same plane। ये तो बिल्कुल वही वाला हो गया, ठीक है, ये चीज तो आपको पहले से पता थी, ये चीज तो आपको पहले से पता थी, लेकिन जो सेकेंड लॉ है दैट इज द मेन थिंग हियर। ये सेकेंड लॉ क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर इन दोनों का डिवीजन करेंगे सो वी आर गोइंग टू गेट अ कांस्टेंट हियर, हमें एक कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है, और ये एक कांस्टेंट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, और ये जो कांस्टेंट होता है इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं 1 म्यू 2, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, वेयर 1 म्यू 2 इज गोइंग टू गेट यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1, ठीक है। ये चीज हम और डिटेल में देखेंगे बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये जो म्यू की बातें हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें हो रही है, वो मैं आपको बताऊंगी, बट आपको ध्यान में रखना है दैट दिस लॉ इज नेम्ड एज द स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस लॉ का नाम क्या है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। एक तो ये जो दोनों लॉज हैं, दीज 2 लॉज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड थिंग, दिस सेकेंड वन इज नोन एज द लॉ जो कि है स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये जो है स्नेल नाम के साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया है बेसिकली। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि भले ही कैसा भी हो, हर एक सरफेस पे दिस टाइप ऑफ जो ये रिफ्रैक्शन के लॉज हैं ये जो है अप्लाई होते हैं, वैलिड हैं एक्चुअली, वी कैन से दैट, ठीक है। तो आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स एंड द लेक्चर हियर। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.